हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. Let us see who all are online. Hi sir, hello Raisal, hello Ravi Kumar, hello Lakshmi Anil, hello Garima, how are you? So great. आज बहुत कम लोग हैं क्या? यार बहुत कम लोग हैं आज. यार ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है कि अभी 15 मिनट्स रिमेनिंग. चलो ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया है. हाय सर, हेलो 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 एवरीवन. यार ये गलत आ गया है राइट पूरा. एक सेकंड, मैं कहाँ पे लाइव हूँ अभी यार. हेलो, हाय एवरीवन. मुझे आप लोग दिख ही नहीं रहे हो. व्हाट इज हैपनिंग गाइज? अभी तक ये स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुआ है. क्या? Am I audible right now? Yes, I am audible right now. Thank you so much. So hello everyone, hello guys, how are you? A very very good evening to one and all. There was some slight technical error, तो उसकी वजह से नहीं हुआ है, but now you can hear me. We are live. So welcome to my class. How are you guys doing? कैसे हो आप लोग? So today is the final chapter, final part है chapter का. हमने we have divided this chapter into 3 parts as you know it. So today is the last chapter of the last part of the chapter. ठीक है guys. So let us see who all are there. Mohit is here. Trapash is here. Hazik is here. Vinu, Garima, Shamil, Lakshmi, Anil, Shivam, Tapash. ठीक है. हाय हाय हेलो एवरीवन. अभी आवाज तो आ रही है ना?
सर इज देयर ओनली मेंटी? नहीं बेटा, मेंटी आज सिर्फ मेंटी नहीं होगा. आज we will have the class, we will have the last part of the class. Tomorrow we'll have menti because yesterday we did not have a class, right? कल हम क्लास नहीं ले पाए थे किसी वजह से, so we have just delayed it by one day. ठीक है, तो मेंटी कल होगा. ठीक है, tomorrow the menti will be there and today will be normal class as it was scheduled. ठीक है ना? हेलो नीरजा, हाय गरिमा, हाय तपश, हाय ऋग्वेद. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट. स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव अ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. आई एम मोहम्मद अल खालिद. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Guwahati. I am here at Unacademy, which happens to be the largest online teaching platform in India. I teach physics. ठीक है, so this chapter is part of physics and here I am taking you, we have been covering this since last 3 days. So this is the final, third and the final part of the chapter. After we have completed this chapter today, we will have a menti on the chapter tomorrow. Is that fine, everyone? Sir, it's showing along with menti. Yes, 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 I know it's showing like that, but that is the previous class because today we were supposed to have a menti, but कल की क्लास नहीं हुई ना, तो कल की क्लास आज लेंगे and we will do the menti tomorrow. ठीक है ना? Fine. So hello Durga, hi, how are you? So what are we going to study today? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज we will have a look at भाई thunderstorm क्या होते हैं? What on earth are thunderstorms? We are going to find out what are thunderstorms. Then we will find out what are cyclones. ठीक है? These two are related by the way. And then there is this cool thing called a tornado. Tornado तो आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा कार्टून्स वगैरह में होता है, लोग उड़ जाते हैं हवा में. So we'll have a look at tornadoes. Then we will look at what are the safety measures we should take in when we have a thunderstorm or a cyclone. ठीक है? This is what we are going to study today. So अभी आप स्क्रीन पे देखोगे, आपको एक थंडरस्टॉर्म दिखाई दे रहा है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ लाइटनिंग ओवर देयर. ऐसा बड़ी बड़ी लाइटनिंग है. हैरी पॉटर का जो स्कार होता है यहाँ पे लाइटनिंग का, वैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग अलग. एंड इट लुक्स वेरी डेंजरस एज वेल, राइट? वुड यू वांट टू गो आउट इन सच अ वेदर? ऐसे वेदर में बाहर निकलना आपको पसंद होगा क्या? नहीं निकलोगे बिकॉज इट लुक्स वेरी डेंजरस, इट लुक्स वेरी स्केरी. So let us find out why do these thunderstorms happen? Thunderstorms क्यों होते हैं? ठीक है, we'll find this out. So the rising temperatures produce strong upward rising winds. तो देखो, imagine it is summer. ठीक है, summer का टाइम है, ठीक है ना? समर में क्या होगा? There will be a lot of heat, so the ground will become hot, so the air will also become hot, right? जमीन गर्म हो गई तो air will be hot. So what happens when the air becomes hot? We found out that hot air rises up. ठीक है ना? जब हवा गर्म हो जाती है, when the air is hot, it rises up. Yes or no? We all know this, right? Nirja is saying, sir, it looks beautiful. Yes, it is beautiful, but it looks scary as well. It is very scary beautiful. तो rising temperature के साथ में हवा ऊपर होती है, ठीक है ना? So the air will start rising up. हवा ऊपर जाएगी. Air will go up, ठीक है ना? Air gets heated up and it will go up. Now what happens is when air goes up, if it is by the sea, अगर वो sea के पास है, so what will it do? It will take water droplets with it. छोटा छोटा सा पानी का है ना, droplets वो ले जाएगा, water vapors को अपने साथ लेके जाएगा. तो with the hot air there will be, you know, this tiny droplets of water which are going up. वो ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, clouds बनते हैं. And as they are going up, बहुत ऊपर 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 जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं. स्पेस बहुत ठंडा है, राइट? अर्थ में लेकिन we have heat. Why do we have heat on the earth? Because of two reasons. ठीक है, one is the sun की वजह से हमें heat मिलती है, and more importantly we get heat from the core of the earth. The earth itself is hot from inside. So when we go to higher altitudes, जैसे जैसे हम ऊपर होंगे, when we go on a mountain it's cold. Yes or no? When we climb on a mountain, is the mountain hot or is the mountain cold?
It is cold. Why? Because we are further away from the Earth's core. Earth का जो core है वहां से गर्म होता है बहुत ज्यादा. So when we go on mountains, it becomes a bit not so cold. So similarly, जब हवा ऊपर जाती है तो वहां पे ठंडी हो जाती है. The hot air which is rising above, after a certain time it becomes cold. और वो इतना कोल्ड हो जाती है कि these water droplets, right? ये जो water droplets कहते हैं ना, तो the water droplet जो पहले ड्रॉपलेट था, नाउ इट विल टर्न इनटू स्नो. इट विल फ्रीज अप. ठीक है, इट विल फ्रीज अप. क्या हो जाएगा? इट विल फ्रीज अप. वो इट विल बिकम आइस. ठीक है ना, दिस ड्रॉपलेट विल बिकम आइस नाउ. ठीक है, छोटे 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 छोटे. सो ऑल दिस ड्रॉपलेट्स विल फ्रीज एंड नाउ सिंस दे आर फ्रोजन दे विल कम डाउन फास्ट. अभी ये क्या होगा? पलट के नीचे आएंगे. कलर चेंज करते हैं. चेंज द कलर प्लीज. यस, कलर हमने चेंज किया तो वो फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, दिस वाटर ड्रॉपलेट हैज फ्रोजन नाउ. बहुत चिन्ना मुन्ना सर, दिस इज नॉट अ स्नोफ्लेक नहीं है ये. ठीक है, दिस इज नॉट अ स्नोफ्लेक, दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट व्हिच हैज फ्रोजन. तो वो नीचे आएगा अभी. ठीक है, बहुत तेजी से आएगा, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट. ठीक है, हवा जितना फास्ट गया था ना उससे भी ज्यादा तेजी से ये नीचे आएगा. ठीक है, सुपर फास्ट इट विल कम डाउन. So when we have these two things happening, कि जब my name is Arya, ठीक है sir, can you repeat this? मैंने complete ही नहीं किया यार, कैसे repeat करूँ? मैं complete कर लूँ फिर repeat कर दूंगा. Fine, I'll complete this first, then I will repeat it. So what happens is hot air is going up, hot air is going up, hot air is taking water droplets with it. Water droplets, they go very high, and then they freeze. What happens after they freezing? They fall down. They come down again. So now there is hot air going up and there is this icy cold water droplets coming down. So because of these two things happening, there will be a lot of lightning. ठीक है, there will be lightning होगा, बहुत ज्यादा storm आ जाएगा, वहां पे sound आएगा, ऐसी आवाजें आएंगी, and we will have lot of lightning. It will be almost blinding to see. ठीक है, so this is how a thunderstorm forms. Is that understood, everyone? Did you understand how a thunderstorm forms? So is that understood? ये समझ में आया ना? Is this clear, everyone, how a thunderstorm forms? Can you tell me how a thunderstorm forms? Is that clear to you people? Is it clear or is it crystal clear? कैसा है, मुझे जल्दी से बताओ. Williams, Alok, Mohanty, J and V is saying clear. So hi Raman Sharma, hi Suruchi, hi Rakin. तो it's crystal clear. So दूसरों को सबको clear है क्या? सब लोग बता दो यार. तो clear. Sir, can we make a tornado with water bottle? ठीक है, आइडिया तो अच्छा है. Tomorrow we'll make. ठीक है, कल बनाते हैं. आज तो मेरे प्रिपरेशन किया हुआ नहीं है. So tomorrow we will try to make. Fine, is that okay? We'll try to make one tomorrow. Great. तो ये सबको क्लियर हो गया है, सबको everyone has this clear. ठीक है ना, ये सबको क्लियर हो गया है. तो अभी हम क्या करेंगे? We'll go to the next thing. The next thing is what are the precautions that we have to take during a thunderstorm. Thunderstorm में precautions क्या लेना है? What are precautions? Precautions are basically things which we take before a thunderstorm or during a thunderstorm to save us so that we stay safe. ठीक है ना? Precautions keep us safe. They do not allow any calamities to form on us. ठीक है ना? Precautions से हम safe रहेंगे. So what are the thunderstorm? तो जब storm होता है, storm के साथ जब lightning होती है उसको thunderstorm बोलते हैं. ठीक है ना? Let me write it down for you. Storm प्लस थंडर और लाइटनिंग. ठीक है, लाइटनिंग करते हैं इसको. अरे यार पूरे को इरेज कर दिया मैंने, तो ऐसे नहीं करना था भाई. तो ठीक है, स्टॉर्म प्लस लाइटनिंग. ठीक है, इज इक्वल टू थंडरस्टॉर्म. ठीक है ना, जब स्टॉर्म और लाइटनिंग एक साथ होती है तो वी कॉल इट
थंडरस्टॉर्म। ये तो आपको पता है ना अभी। सर इट्स लुकिंग स्केरी, यस इट इज वेरी स्केरी, ठीक है ना। लर्न विथ फन, व्हाट इज नॉट क्लियर बेटा, क्या क्लियर नहीं हुआ मुझे पूछो, मैं बोलूंगा आपको। सर आई लव थंडर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस। तो अभी हम प्रिकॉशंस देखते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी टेक ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है ना। थंडरस्टॉर्म के टाइम पे हम प्रिकॉशंस क्या लेते हैं। फर्स्ट थिंग, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, ठीक है ना। अगर आप एक कहीं पे दिखाई देगा, कहीं पे कुछ नहीं है बट एक पेड़ है दूर कहीं पे, देयर इज ओनली वन ट्री अराउंड, so do not go and stand under that tree because what happens is the lightning can come and strike that tree, ठीक है। the lightning जो बिजली है वो गिर सकती है पेड़ के ऊपर, the lightning can strike the tree, so do not go and stand under a isolated tree, cool। and if you are in a forest, if there are a lot of trees, if there are many trees around you, then choose a small tree, ठीक है ना, because the lightning will come and go to the tall trees, so it's safer if you stand under a smaller tree, ठीक है ना। also do not lie on the ground, जमीन पे लेटना नहीं है आपको, you should not lie down on the ground, ठीक है। yes yes yes, thunderstorm means आपको जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है ना, there is a storm and there is lot of lightning going on, that is called a thunderstorm, ठीक है। now this was the first precaution। अभी next देखते हैं, do not take shelter under a umbrella with metallic end। तो आपके पास अगर umbrella है and the umbrella has a metal part, for example this is the umbrella, ठीक है ना, ये एक umbrella है, ठीक है। and umbrella का जो handle है, ये जो हैंडल है ना अम्ब्रेला का, इफ दिस इज मेटल, अगर वो मेटल का है, इफ दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, एक सेकेंड, दिस लुक्स वेरी स्केरी यार, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है ना। जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस, मैं इसको छोटा कर देता हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे, ठीक है। दिस इज फाइन नाउ, okay you people cannot see that, again I'll have to make it visible, okay great great great। so right now if you have an umbrella, ठीक है ना, अगर आपके पास एक umbrella है and the umbrella has a handle made out of metal, ठीक है ना, this is an umbrella example, for example this is an umbrella, ठीक है। और जो umbrella है उसका handle if it is made out of metal, so then you should not use that umbrella because metal का जो handle होगा ना उसको भी आके lightning attract कर सकता है, fine, ठीक है। हाय सर माय नेम इज आर्या, ठीक है, हाय आर्या, यस कूल कूल। इज देयर मेंटी, नो मेंटी इज टुमारो बेटा, कल है मेंटी। तो मेटल हमें क्या करना है, वी डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना है, लेना है तो स्मॉल ट्री के अंदर लेना है, वी हैव टू टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री। वी शुड नॉट यूज एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक हैंडल, ठीक है। मेटालिक एंड जो है ऊपर, ये टॉप पे अगर मेटल है, ठीक है, इफ दिस इज अ मेटल then we should not use it, if this the rod is made up of metal we should not use it, ठीक है। do not sit near a window, you should not sit near a window, और ओपन गैराज, गैराज है, गैराज में नहीं बैठना है, और मेटल का बना हुआ कोई भी शेड हो, सो बेसिकली स्टे अवे फ्रॉम अ मेटल थिंग, ठीक है। इफ देयर इज अ पोल, अगर पिलर है बड़ा सा, या फिर है ना जो इलेक्ट्रिक का पोल होता है ना जहां पे से आपको लाइट आती है, स्ट्रीट लाइट वगैरह बनी होती है, सो डोंट बी नियर देम, जहां पे भी मेटल्स होंगे वहां पे नहीं जाना है, ठीक है। मेटल शेड्स के पास आपको नहीं जाना है, यू शुड नॉट गो नियर मेटल शेड्स। प्लीज डू नॉट स्पैम यार, बार बार सेम चीज मत पूछो, ठीक है ना।
Yes, metal is a conductor and lightning will strike it. ठीक है? So you can sit in a car. कार में आप बैठ सकते हो, बस में आप बैठ सकते हो. You know why? Why can you sit in a car or a bus? Because a car or a bus has, what do they have? They have tires. Tires are made up of rubber. तो क्या होगा यहाँ पे? They are insulators. ठीक है ना? तो वहां पे आप सेफ रहोगे. So you can sit in cars, you can sit in buses. ठीक है? So this is all better. And if you are there in a water body, अगर आप swimming pool में हो तो फौरी निकलना है. You should immediately get out of water and get inside the building. If you are in a lake side or you are in a swimming in a river, you should get out immediately, go inside some building. ठीक है? So these are the precautions. ठीक है? Shamil, please do not spam. I read your message once. Please do not ask the same thing 10 times. I do not like it. Sir, can we wear rubber during lightning? Yeah, you can wear rubber during lightning, but lightning is actually too strong. Yes. So ठीक है. तो ये सब क्लियर हो गया ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ओनली वन ट्री. देयर इज ओनली वन ट्री अराउंड, डू नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री. द लाइटनिंग कैन कम. इफ देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज, देन यू कैन स्टैंड अंडर अ small or a short tree. Do not stand under a tall tree. Then what do we have? You should not hold an umbrella which has a metal tip or a metal end. We should not use that. We should not sit near open windows or sheds which are made up of metal. We can sit in a car or a bus. That is fine. And if we are in water, we should immediately get out and get inside a building. So buildings are safe place to be there during a thunderstorm. Chalo. Next, cyclones. Cyclones are even more interesting and even more dangerous. Cyclones are very very dangerous. ठीक है? Can you see how big this cyclone is? कितना बड़ा है ये cyclone? कितना बड़ा effect है ना cyclone का? Cyclones can generally what happens is thunderstorm के बीच में से cyclone बन जा सकता है. ठीक है ना? A cyclone like a thunderstorm can become a cyclone. ठीक है? How does that happen? I will explain to you. You all remember how a thunderstorm becomes, right? Thunderstorm कैसे बनता है? Cyclone almost always becomes on a, it is made on a ocean. ये समंदर में बनता है. It does not like है ना, cyclone आपको जमीन पे ऐसा बना हुआ नहीं आएगा. It starts in the ocean mostly. Sir, will you take 1 hour class today? Yes, almost 1 hour का class होगा. ठीक है ना? So how does a thunderstorm become cyclone? तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा पहले. फर्स्ट थिंग इज, डू यू पीपल रिमेंबर फॉर वेपराइजेशन टू हैपन वी नीड हीट? यस और नो? ये आपको याद है, आपने बहुत पहले पढ़ा था कि वाटर है, वाटर में से वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है वाटर को. व्हाट डू वी डू? वी कीप इट ऑन अ स्टोव, राइट? हम क्या करेंगे, वाटर को एक ग्लास में रखेंगे, कहीं भी रख के वी विल हीट इट अप. और जैसे जैसे वो हॉट होगा, the water will turn into a vapor. Yes or no? Yes. ठीक है ना? Water turns into vapor. So water requires heat to turn from liquid to vapor state. Yes or no? Liquid से अगर गैस बनना है, देखो ये ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है. ठीक है? इसके अंदर पानी है. For this water to turn into gas and come out of it, we need some heat, right? हमें क्या चाहिए? We need some heat under it. तो ये hot होगा तो वो vapor बन जाएगा. Yes or no? ये आपको याद है कि नहीं है? Yes, yes, yes sir, yes sir, yes sir. ठीक है, ये याद है सबको. So इसका उल्टा क्या होगा? When water comes back from vapor to liquid, ठीक है, जब vapor से बनेगा water जाके liquid, it will give out heat. ठीक है ना? वो गर्मी दे देगा. It will give off heat to us, return back the heat which it already took from us. ठीक है ना? So you have to remember this. And water will give back heat when vapor condenses into liquid. So when water condenses, it will give off heat. ठीक है ना?
So when you keep a cool glass of water, यहाँ पे बाहर क्या होगा? You will find lot of water droplets. How do they come? That happens because of condensation. ठीक है ना? बाहर से क्या होगा? हवा में जो एयर का जो वाटर वेपर्स है, they will stick here and they will give off heat. इसीलिए पानी, ठंडा पानी आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दोगे तो it will become hot, right? Cold water, if you keep it outside in the air, after some time it will become normal, right? It will lose all its cold. How? Because it gets the heat from the condensed water droplets. ये जो water droplets है ना, ये गर्मी देंगे. This will make the water inside hot. ठीक है? Is this clear, everyone? Boss gamer is saying, sir, I am late. No problem. Ravi Kumar is saying exothermic reaction. Yes, it is an exothermic reaction. I think all of you are watching थोड़ा पीछे हो आप लोग कुछ सबसे. I'll just I will count till 10 and I will come back again so that everyone is like, मैं जो पढ़ा रहा हूँ everyone is commenting around some 20-30. Cool. अभी हम बराबर है. So Menti is tomorrow बेटा. Tomorrow we will have Menti. We will not have Menti today. So what happens is, thunderstorm अभी कैसा बनते हैं? Cyclone. How does a thunderstorm turn into a cyclone? That is what we are going to understand now. So what happens? Water क्या करेगा? मैंने बोला था कि अभी everything is hot, ठीक है ना? हवा गर्म चल रही है. Summer का टाइम है समझो आप. So what happens is, because there is lot of heat, the water will evaporate from the sea. जो समंदर में पानी है, that will evaporate, right? वो evaporate होगा and it will go up and it will become clouds. Yes or no? पानी गर्म होगा, it will become water vapors. Water vapors will go up and they will become clouds. ठीक है? Is this fine? Is it lagging now? अगर फिर से lag कर रहा है क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया अभी. Yeah, it's working fine only. So now you know that what is happening. The water vapors are rising up, they are going up, they are becoming clouds. ठीक है? That is the first thing which happens. ठीक है? But when the rain comes back, जब clouds rain बन के आएंगे, when it rains down due to the clouds, what happens? The water vapors convert into raindrops, right? So what will they do? They will give off heat. ठीक है ना? When water vapor changes back to liquid as raindrops, the heat is released into the atmosphere. ठीक है? The atmosphere will become hot because of the rain. जब rain होगा तो ऊपर पूरा atmosphere गर्म हो जाएगा. Then what happens? Because now the atmosphere is hot, the air also becomes hot, right? Yes or no? The air also becomes hot. तो air hot हो गया तो क्या होगा? The air will rise up. Air will rise up again. Now when the air rises up, you know that hot air rises up. वो ऊपर चले गया तो नीचे प्रेशर कम हो जाएगा. Yes or no? The pressure which is there, that will become low. क्योंकि एक तो तेजी से हवा ऊपर गया. When there is a high wind, the pressure drops. Yes or no? And again, wind went up means नीचे यहाँ पे कुछ और नहीं है तो प्रेशर तो कम होना ही था. Unless some cold wind comes back, it will be a very low pressure. Yes or no? Sir, will you do experiment today? आज नहीं करूंगा experiment. No experiments today. Tomorrow we can try doing an experiment. तो ये समझ में आ गया. So now what happens is, now there is lot of low pressure. और मैंने क्या बोला? Low pressure में क्या होगा? Cold air will come from other places. तो ठंडी हवा आएगी दूसरी जगह से. अभी क्या होगा? This will go on as a cycle. तो क्या हो रहा है? गर्म हवा पहले जाके क्लाउड बनेगी ऐसे, फिर वो गर्म हवा ठंडी होके नीचे आएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर ऐसे 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 अलग अलग लेयर्स में है ना, अलग अलग चलता रहेगा. ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. So this is what will keep on happening. Let us have a look. So क्या होगा? This chain of events, ये जो हमने events आपको बताया कि ऐसे वो पहले गर्म हवा जा रही है, फिर ठंडी हवा जा रही है, ऐसे will form a very low pressure and high speed winds. इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा पूरा,
पूरा एरिया में लो प्रेशर हो जाएगा एंड हाई स्पीड विंड्स विल गो अराउंड इट, यानी साइड साइड से हवा आ रही है बहुत ज्यादा. सो दिस बिकम्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पे आप गौर करो क्या हो रहा है. यहां से गर्म हवा जा रही है ऊपर, इट इज गोइंग अप 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 अप, ऐसे 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 ऊपर जाके वो ठंडी हो रही है. ठीक है, और वो ऐसा घूमेगी बाहर अराउंड, इट विल मूव लाइक दिस. ठीक है, इट विल रोटेट लाइक दिस. वो बाहर की तरफ, oh my pen fell down guys, तो वो बाहर की तरफ गोल गोल घूमेंगी. लेट मी गो एंड गेट माय पेन, सॉरी. सो ऐसा होगा एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ हाई स्पीड विंड्स बिकॉज ऑफ दैट, एंड दिस हैपेंस इन मल्टीपल डायरेक्शंस. ठीक है, तो यहां पे आपको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है ना. कैन यू सी हाउ द एयर इज गोइंग अवे फार फ्रॉम दिस, बहुत दूर दूर तक जा रही है, राइट? इतना दूर दूर तक जा रही है. बट इसका जो सेंटर है ना, द सेंटर इज हॉलो, सेंटर में ज्यादा विंड नहीं रहेगी. दिस प्लेस, ये जो सेंटर में इतना जो जगह है ना, दिस विल बी हॉलो, इसमें सिर्फ हवा रहेगी. एंड द वाटर, एंड इट्स वेरी लो प्रेशर अगेन. ठीक है ना, क्या है इसमें? इट्स लो प्रेशर. कैन यू सी द एयर इज गोइंग अवे. सो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल स्टार्ट राइजिंग, पानी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा. सिंस देयर इज लो प्रेशर, द वाटर विल राइज अप, तो यहाँ पे पानी फिल हो जाएगा पूरा, यहाँ पे पानी भर जाएगा इसके अंदर. सो वाटर विल राइज अप टू 12 मीटर्स, 3 मीटर से लेकर 12 मीटर्स तक, इतना ऊपर तक वाटर आएगा. सर व्हाई रोटेट? बिकॉज विंड्स है, दे विल स्प्रेड आउट. लो प्रेशर है ना, तो नीचे से विंड आ रही है, ऊपर फैल रही है. विंड हैज टू गो समवेयर, राइट? सो हियर यू हैव अनदर थिंग, एंड बाय द वे वी कॉल दिस द आई ऑफ द साइक्लोन. अब हम जब टॉप व्यू से देख रहे हैं, इट लुक्स लाइक एन आई, राइट? यहाँ पे देखो हमारी आई जैसा है, वी हैव अ ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर एंड व्हाइट अराउंड इट. सो सिमिलरली यू कैन सी दैट हियर इट लुक्स लाइक एन आई. यस और नो? दिस थिंग right over here, it looks like an eye. This क्या, कहां लाइन ड्रॉ हो रही है यार? Let me draw again. So yeah, this thing looks like an eye, right? So we call it eye of a cyclone. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? We'll call it an eye of the cyclone. So see, there is another picture over here. तो ये जो आई ऑफ द साइक्लोन है ना, इसमें प्रेशर कम हो जाएगा बहुत. सो द वाटर फ्रॉम द सी, जो सी का वाटर है, इट विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन, और इसके अंदर पानी भर जाएगा. और जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो क्या होगा भला? Wherever the cyclone goes, it will take a lot of water in its eye. So if it comes to the coastal areas, there will be a flood. समझे? क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी लेके आ रहा है इतना सारा अपने पास. एंड दिस कुड बी वेरी वाइड. आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर से, दिस, इसका जो विड्थ है, दिस कैन बी, इट्स डायमीटर कैन बी 15 किलोमीटर्स. 15 किलोमीटर बड़ा हो सकता है. कैन यू इमेजिन हाउ बिग इट इज? कितना बड़ा होगा ना साइक्लोन. नीचे से सी यू, इट्स रिटन ओवर हियर 10 to 30 किलोमीटर जा सकता है. एंड द वाटर कैन राइज अप टू, ये जो है यहां तक, लाइक 12 मीटर्स ऊपर तक वाटर राइज हो सकता है. मेंटी कब होगा फराजुद्दीन? मेंटी कल होगा बेटा, मेंटी टुमारो, मेंटी टुमारो. कूल, मेंटी टुमारो, फाइन. कल है मेंटी, देख लो देख लो देख लो देख लो, मेंटी कल है, दिखाई दे रहा है ना सबको अभी. चलो अभी मेंटी के बारे में मुझसे मत पूछो प्लीज. डू नॉट आस्क अबाउट मेंटी अगेन प्लीज. अभी क्लास पे आप तवज्जो दो. So did you people understand यहाँ पे क्या हो रहा है? See, there is another image of the eye of the cyclone over here. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, it looks like an eye. देखो राउंड है और बीच में एक डार्क स्पॉट है. So because of this, what happens is there is a lot of high speed winds. There is a lot of rain, continuous air. मैंने बोला कि हवा जो निकल रही है ना, this air which is going out, this air which is coming out of this, it carries water. It has lot of clouds. It's made up of clouds. So this will go and have a lot of rain everywhere.
तो बड़ा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाएंगे, रोड्स पे पानी आ जाएगा, हर जगह पे देयर विल बी अ बिग फ्लड, घरों में पानी आ जाएगा, लोग के घर गिर भी सकते हैं, देयर विल बी लाइटनिंग एज वेल। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 टफ सिचुएशन, राइट? इट इज गोइंग टू कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत बर्बादी करेगा ये साइक्लोन्स, ठीक है? द साइक्लोन विल हैव अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है? सर रिपीट थंडरस्टॉर्म्स, आप पीछे जाके देख लो थंडरस्टॉर्म्स आफ्टर द वीडियो इज डन, प्लीज गो बैक एंड सी। सबको समझ में आया, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छे से देखना, ठीक है? इज दैट कूल? तो अभी आपको समझ में आ गया कि साइक्लोन से क्या क्या हो सकता है, हाउ डेंजरस अ साइक्लोन इज। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट साइक्लोन? साइक्लोन किन चीजों से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल विंड स्पीड होनी चाहिए, विंड स्पीड होती है, विंड का डायरेक्शन कहां जा रहा है, देखो पहले विंड स्पीड जा रही है, फिर कौन से डायरेक्शन में जा रही है, दैट आल्सो मैटर्स, देन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। if all these four things are there in certain quantities or certain values, then it becomes a cyclone, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड है, दे आर ऑल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन में से जा रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है जिसकी वजह से बार बार है ना एयर इज राइजिंग अप, बिकमिंग कोल्ड, कमिंग डाउन अगेन, एंड देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी मींस देयर इज लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये सारी चीजें हैं तो इट फॉर्म्स अ साइक्लोन, ठीक है? Sir, please answer. Is this like Amphan? Yes, Amphan was also a cyclone. Amphan was a cyclone, ठीक है ना? Amphan was the name of the cyclone. So इंडिया में cyclones बहुत आते हैं, ठीक है ना? India is very prone to cyclones. So for example, अगर इंडिया मैप पे रफली ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना? तो ये इंडियन ओशन है, राइट? सो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो ईस्ट की साइड पे देयर आर लॉट ऑफ साइक्लोन्स, बड़े बड़े साइक्लोन्स आएंगे, वेस्ट की साइड पे भी बड़े बड़े साइक्लोन्स आएंगे। इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स, ठीक है ना? दोनों तरफ से साइक्लोन्स बड़े बड़े आ सकते हैं, बट ईस्ट में दे आर अ बिट मोर, ठीक है? ईस्ट में और ज्यादा आएंगे, बट साइक्लोन्स आर देयर, इंटेंसिटी में भी, नंबर में भी ईस्ट में ज्यादा आएंगे साइक्लोन्स, ठीक है ना? सो ईस्ट हैज मोर साइक्लोन्स and west also has cyclones, but they are less, they are not very powerful cyclones। ईस्ट के साइक्लोन्स बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। वेस्ट में साइक्लोन्स थोड़ा कम आएंगे, दे विल बी अ लिटिल वीकर, बट दे स्टिल कम, ठीक है? यस, इंडिया इज अ कोस्टल एरिया, तो साइक्लोन कोस्टल एरिया में ही आता है। साइक्लोन कम्स फ्रॉम द सी, राइट? साइक्लोन सी में से आता है, तो इट हैपेंस एट कोस्टल एरियाज ओनली। अनदर थिंग अबाउट साइक्लोन्स इज, जब साइक्लोन घूम रहा है ना, देखो साइक्लोन कितना बड़ा है, तो इवन इफ साइक्लोन इज ओवर हियर, इफ साइक्लोन इज hundreds of kilometers away from the coast, the water will still rise up, ठीक है ना? पानी बहुत दूर दूर तक जाएगा, तो पानी से फ्लड आ जाएगा, there will be flooding happening over here, ठीक है? तो यहां पे पानी आएगा और फ्लड हो सकता है, just because of the cyclone happening some 100 kilometers away, there will be flood in the coastal areas। यहां पे दूर भी हो रहा है, even if it's hundreds of kilometers away, there can still be flood in the coastal areas, ठीक है? Is that clear everyone? Sir, why cyclone happens? यार ये तो मैंने समझाया ना साइक्लोन क्यों होता है, देखो ये वाली स्लाइड में लिखा हुआ है क्यों होता है साइक्लोन, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन तो मैंने दिया है साइक्लोन क्यों होता है। तो आप ये फिर से देख लो, एक टाइम रिवाइंड करके देख लो, समझ में नहीं आया है तो, बाकी सबको तो समझ में आ गया है, सबने बोला है कि सर क्रिस्टल क्लियर है। तो वन मोर थिंग, आप लोग पूछ रहे हो कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइफून, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हरिकेन एंड अ साइक्लोन? सो ऑल ऑफ देम आर सेम, ठीक है? अलग अलग नाम है, एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, सेम थिंग डिफरेंट पैकेजिंग, ठीक है? कभी आपने कोई सामान खरीदा होगा, यार मैं ये चॉकलेट लेता हूँ, अंदर से सेम निकलता है, दूसरा एक अलग नाम का चॉकलेट होगा, वो खोलोगे सेम निकलता है अंदर से। वैसे ही the typhoon, hurricane and the cyclone are just three names for the same thing, ठीक है? तो when it happens in America, अमेरिका में भी बहुत होता है, तो अमेरिकन्स कॉल इट हरिकेन, ठीक है ना? अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन्स कॉल इट, देखो ये अमेरिका है, राइट? दिस इज अमेरिका,
This America? Yeah, this is America. This is America, sorry. This is America. This is South America, ठीक है? South America है, this is North America. तो यहाँ पे आओ, देखो आप जहाँ पे जब भी हो रहा था, they call it hurricane. हरिकेन बोल रहे हैं इसको. हरिकेन हार्वी आपने नाम सुना होगा, right? And when it happens in जापान के अलावा एरियाज है, जापान के आइलैंड्स के पास हो रहा है, दे कॉल इट टाइफून, ठीक है? दे कॉल इट टाइफून. जापानीज पीपल कॉल इट टाइफून, अमेरिकन्स कॉल इट हरिकेन, एंड वी इंडियंस इंडिया में या एशिया में जब भी होता है वी कॉल इट अ साइक्लोन, ठीक है? दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो साइक्लोन इज इक्वल टू हरिकेन is equal to typhoon, ठीक है? Typhoon, hurricane and cyclone are all one and the same. It's just different names, ठीक है? जैसा हिंदी में हम बोलते हैं मनुष्य, आदमी, इंग्लिश में we call it man, human, right? उर्दू में हम बोलते हैं इंसान. तो वैसे ही different parts of the world have different names for cyclone. Some people call it typhoon, some people call it hurricane, some people call it cyclone. तो ये हो गया. नाउ वी विल हैव अ लुक एट टॉर्नाडोज. ये समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बोल दो. क्लियर हुआ? साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून का डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? नो मेंटी, नो मेंटी नहीं है बेटा. सर व्हाई ब्लैक टी शर्ट प्रोड्यूस मोर हीट? ये मैंने हीट के चैप्टर में पढ़ाया है आपको. डाउट क्लियरिंग वाला सेशन होगा बहुत सून. वी विल हैव अ डाउट क्लियरिंग सेशन. इन दैट यू आस्क मी, आई विल आंसर इट टू यू, ठीक है? सर व्हाट इज योर बर्थ प्लेस? आई एम फ्रॉम हैदराबाद. आई वाज बोर्न इन हैदराबाद, ठीक है? तो आई विल जस्ट राइट डाउन मेंटी कब होने वाला है. मीनवाइल मेंटी इज इक्वल टू टुमारो. मेंटी कल होगा, ठीक है ना? सो क्लियर सर, क्राइमन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके श्रिया क्लियर क्लियर क्लियर. वेलाजी तुम शांत रहो, ठीक है? शांत किसको बोल रहे हो यार? कमेंट्स में आपस में मत लड़ दो ऐसे आप. क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. अखिलेश मेंटी आज नहीं होगा बेटा. मेंटी मैंने बोल दिया ना आज नहीं है, तो नहीं होगा मेंटी. कैसे होगा मेंटी अगर मैंने नहीं करवाया तो क्लियर एवरीवन. श्रिया, आई एम ऋषभ, कैरी क्लियर, ठीक है? फाइन. नाउ वी विल हैव अ लुक एट टॉर्नाडोज, ठीक है? टॉर्नाडो भाई, टॉर्नाडो बहुत 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 खतरनाक चीज लगती है मुझे. आई हैव नेवर सीन अ टॉर्नाडो इन माय लाइफ बिकॉज इन इंडिया टॉर्नाडोज डोंट हैपन अ लॉट, ठीक है ना? इन इंडिया टॉर्नाडोज आर वेरी रेयर. बहुत कम होते हैं इंडिया में, कभी कभी होता है. बट इन यूएसए, इन अमेरिका, देयर आर अ लॉट ऑफ टॉर्नाडोज. सो टॉर्नाडोज एयर के बने होते हैं, बट दे कैन हैपन इन द सी एज वेल. तो जब साइक्लोन चल रहा है तो साइक्लोन के बीच में भी टॉर्नाडो आ सकता है, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इन अ टॉर्नाडो इज अ डार्क फनल. देखो इसका शेप दिख रहा है ना आपको? कैसा शेप है? इट्स लाइक अ फनल शेप है, ऐसा उल्टा वी शेप है, ठीक है? इट्स अ क्लाउड विच रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. पूरा आसमान से लेके जमीन तक टच कर रहा है वो. देखो, कैन यू सी इट्स देयर ऑन द ग्राउंड एज वेल, ठीक है? सो दैट इज व्हाट अ टॉर्नाडो इज. एंड व्हाट डज टॉर्नाडो डू? इट विल सक अप एवरीथिंग. डस्ट जितनी है, सॉइल जितनी है, जो जो भी दिख रहा है उसके रास्ते में जो भी आया ना, इट विल टेक इट, इट विल गो फ्रॉम इनसाइड द टॉर्नाडो के अंदर से जाके बाहर फेंक देगा, बहुत दूर ले जाके. इवन इफ यू आर अ ह्यूमन, इतना पावरफुल होता है टॉर्नाडो के, वो आपको ह्यूमंस को भी उठा के फेंक देगा, ठीक है? टॉर्नाडोज यू माइट हैव सीन इन मूवीज. आपने थॉर वाली मूवी में देखा होगा, देयर इज अ ह्यूज टॉर्नाडो, ठीक है? एंड मोस्ट टॉर्नाडोज इन इंडिया आर वीक, बट जो वायलेंट टॉर्नाडोज होते हैं दे कैन गो अप टू 3000 किलोमीटर, ठीक है? 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल कर सकते हैं, उतना फास्ट होता है टॉर्नाडो, ठीक है? क्या स्पीड होगी टॉर्नाडो की? इफ इट इज अ वायलेंट टॉर्नाडो, इफ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल टॉर्नाडो. सर इन बैकग्राउंड इज दैट अ रियल वीडियो? यस, इट इज अ रियल वीडियो. वो जो वीडियो है इट इज रियल. So it can travel up to the speeds of 300 kilometers per hour. एक घंटे में 300 किलोमीटर दूर तक चला जाएगा. Lot of destruction comes in tornadoes as well. And do you know what is the diameter of a tornado? This can be, ये जो diameter आपको दिखाई दे रहा है ना, this can range from 1 meter. छोटा tornado होगा तो 1 meter का होगा.
बड़ा होगा तो इट कैन गो अप टू 1 किलोमीटर वाइड, उतना बड़ा डायमीटर हो सकता है उसका। सो टॉर्नेडोज भी जस्ट लाइक साइक्लोन्स बट दे हैपन विद एयर, इसमें पानी कमी होगा। इट कैन हैपन ऑन लैंड एज वेल, इट कैन हैपन इन द साइक्लोन एज वेल, ठीक है। सो ये क्लियर है? इज इट हार्मफुल? यस। तो इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज अ टॉर्नेडो? टॉर्नेडो, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म सबको समझ में आ गया ना? एवरीवन हैज अंडरस्टूड what a tornado, what a cyclone and what a thunderstorm is? Yes or no? यार कोई बोल रहा है सर आप बहुत बोरिंग हो। यार मैं इतना बोरिंग भी नहीं हूँ। आई ट्राई टू मेक इट फन, आपको और थोड़ा फन। मैं एक जोक सुनाऊंगा आप सबको। शुड आई टेल यू अ जोक? मैं जोक सुनाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा, मुझे अच्छे जोक आते ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे वो लाइक अच्छा लाइक जोक ही नहीं आते यार मुझे। मैं आई एम एक्चुअली वेरी बोरिंग, मैं बहुत बोरिंग हूँ यार, मैं बहुत बोरिंग हूँ। मैं क्लास भी लूंगा तो इतना बोर होंगे ना, सब लोग सो रहे होंगे। आप लोग तो अभी कोई अटेंशन दे भी रहे हैं क्या क्लास में? सब सो रहे हो ना? यू आर ऑल स्लीपिंग राइट? यू डू नॉट लाइक दिस क्लास, अच्छा नहीं लग रहा है। एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कराता है ये सर, तो फिजिक्स भी सही से नहीं पढ़ाता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं सर। तो ये क्लियर हुआ क्या? मुझे बोलो अभी, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ तो आई विल मूव अहेड। तो क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर। यस अभिनव यू आर राइट, ठीक है। नो सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, थैंक यू। अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। तो हाउ टॉर्नेडोज फॉर्म? टॉर्नेडोज फॉर्म विद इन साइक्लोन। जैसे साइक्लोन घूमते ही हुए हवा बन जाती है ना साइक्लोन में, वेरी सिमिलरली विद इन साइक्लोन्स टॉर्नेडोज कैन फॉर्म, ठीक है। जैसे साइक्लोन सी में होता है, टॉर्नेडो कैन हैपन ऑन द लैंड एज वेल। सो दैट इज ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट टॉर्नेडोज, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। अभी हमने नोटिस किया है कि ऑल ऑफ दीज हैपन बिकॉज ऑफ एयर। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सब में एयर इन्वॉल्व है ना। थंडरस्टॉर्म में एयर है, साइक्लोन में एयर है, टॉर्नेडो में तो एयर ही एयर है। टॉर्नेडो तो पूरा सब एयर अंदर खींच रहा है अपने। तो वी मेड एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एयर का स्पीड, विंड स्पीड हम मेजर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर आपने देखा होगा ना, देयर इज अ जो ऊपर ऐसा मुर्गे की तरह बना होता है, नॉर्थ वेस्ट का उसमें डायरेक्शन डाला होता है। इट्स देयर इन मेनी कार्टून्स एज वेल। शॉन द शीप का जो शेड होता है ना, शॉन द शीप हैज अ शेड एंड ऑन टॉप ऑफ द शेड वी हैव दैट, जहां पे सुबह सुबह मुर्गा जाके ऐसे आवाज निकालता है, वहां पे आपको एक एनीमोमीटर दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट एन एनीमोमीटर इज। जैसे हवा जाएगी ना, सो व्हाट हैपेंस इज दीज थिंग्स when wind comes ऐसा आके it will hit this, right? It will hit this, so it will start rotating, and how fast is it rotating will tell us what is the speed of the wind. And this arrow like thing on the top, that arrow like thing on the top will tell us how, in what direction the wind is going. If you want we can have a session and I will teach you how to make an anemometer, ठीक है ना। हम एक anemometer बनाएंगे, cool, we'll make an anemometer, don't worry, I'll teach you how to make an anemometer. So now we will have a look at some precautions and some things which has helped us. So advanced technology ने हमें बहुत हेल्प किया है। पहले जमाने में यार साइक्लोन आ जाता था या है ना टॉर्नेडो आ जाता था, तो ओनली वे हाउ वी वुड नो इट वाज देयर वर सम साइंस के, ठीक है, कि है ना ओशन पीछे जा रहा है या ओशन में फ्लड आ रहा है या बर्ड्स गो अवे, दैट इज ऑल वी न्यू। बट ह्यूमंस के पास ज्यादा नॉलेज ऐसी नहीं थी कि ह्यूमंस बाय देमसेल्व्स कुड फाइंड आउट इफ अ टॉर्नेडो इज कमिंग और नॉट। But due to radar technology and satellites are there, we are technologically so much advanced right now that we can see if a tornado is coming or if a cyclone is coming, ठीक है। तो a cyclone alert or a cyclone watch is issued 24 hours in advance nowadays, ठीक है। अगर storm आ रहा है तो 48 hours पहले भी आ सकता है। cyclone alert और a cyclone watch is issued 40 hours advance of any expected storm, तो यानी 2 दिन पहले से हमें पता चल जा सकता है, ठीक है, कि साइक्लोन आ रहा है। सबको हम बोल देंगे, अलर्ट कर देंगे, सबको मैसेज आएगा, टीवी पे बोलेगा नमस्कार, आपके लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में साइक्लोन आ सकता है, आप लोग सब तैयार रहिए। ये है ब्रॉडकास्ट, अभी अभी न्यूज आ रही है हमारे पास
कि हाई अलर्ट पे आपका एरिया कर दिया गया है, आपके घर के पास, आपके एरिया में, आपके सिटी में विद इन नेक्स्ट 2 days देयर कैन बी अ साइक्लोन, सो बी अलर्ट प्लीज। तो ऐसे होता है साइक्लोन का अलर्ट, या साइक्लोन वॉच भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में तो पक्का पता चल जाता है कि आने ही वाला है। तो 24 आवर्स में फिर से आएगा न्यूज वाला या रेडियो वाला जो भी है, वो आएगा, ब्रेकिंग न्यूज एवरीवन, स्टॉप डूइंग व्हाटएवर इज हैपनिंग, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स देयर इज गोइंग टू बी अ साइक्लोन, साइक्लोन वार्निंग है ये, दिस वार्निंग लेवल समथिंग लेवल से कि इतना है ना साइक्लोन आने वाला है, दिस इज द वार्निंग फॉर यू ऑल, देयर इज अ साइक्लोन गोइंग टू कम इन योर एरिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द मैसेज, प्लीज टेक द अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस, ऐसा वो बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसा साइक्लोन का वार्निंग भी हमें पता चल जाता है। और ये है ना जो मैसेज होता है ना कोस्टल एरियाज में, हर आधे घंटे को रिपीट होगा, टीवी पे, रेडियो पे, या पुलिस पेट्रोल का व्हीकल्स में जो उनके पास माइक सिस्टम होता है उसमें, हर जगह पे आएगा, सो दैट एवरीवन नोज कि देयर इज अ साइक्लोन व्हिच इज गोइंग टू कम एंड एवरीवन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। बिकॉज साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। साइक्लोन्स आपने देखा कि कितना है, लाइक मुझे अभी साइक्लोन्स के बारे में बात करते हुए मुझे डर हो रहा है साइक्लोन से। What will happen if cyclone comes near your area? It is very very dangerous. So that is why हम सारा इतना precautions लेते हैं by using satellites and radars, हमें पता चल गया तो सबको बताते हैं, ठीक है ना। Someone is saying, sir, you have to be a journalist. नहीं भाई, I am good as a teacher. I love, being a teacher. Journalist मुझसे नहीं होगा यार, बहुत चीखना पड़ता है। मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पानी पी रहा हूँ। बट मे बी आप एक दिन बन जाएंगे जर्नलिस्ट भी, अगर आप लोग बोलोगे तो बना देंगे। एक दिन मैं क्लास ही ले लूंगा जर्नलिस्ट की। तो नाउ वी विल हैव टू लुक एट सेफ्टी मेजर्स। तो ये तो गवर्नमेंट ने हमें बोल दिया कि भाई आने वाला है, सेफ्टी मेजर्स ले लो। सो व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड वी टेक, क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है हमें, वो हम देखते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स ऑफ फर्स्ट चीज होती है, मैंने बोला कि साइक्लोन का फोरकास्ट और वार्निंग सर्विस होती है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट है ना विल हैव अ डिपार्टमेंट जो हमेशा चेक करता रहता है कि वेदर कैसा है, क्या वेदर होने वाला है, कहीं साइक्लोन तो नहीं आ रहा है, एंड दे विल गिव अस वार्निंग, ठीक है ना। वो बोलेंगे तो टीवी वाले फिर आपको वार्न करेंगे, ठीक है ना। एंड देन सेकंड देयर इज रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स, जहां पे भी है। तो जैसा आप तो घर में आपको टीवी वाला ने बोल दिया व्हाट इफ देयर फिशरमैन हु आर देयर इन द ओशन, तो उनको भी जल्दी से रेडियो लगा के बोल देंगे कि है ना मेडे 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 मेडे, साइक्लोन आने वाला है, जल्दी से वापस आ जाओ जल्दी। इफ देयर इज अ शिप और इफ देयर इज अ सी पोर्ट नियर, तो वो लोग सब बंद करके अपने आप को सेव कर लेंगे, ठीक है ना। रैपिड कम्युनिकेशन मींस फास्ट कम्युनिकेशन। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा या गवर्नमेंट एजेंसीज को पता चलेगा या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को पता चलेगा, दे विल इमीडिएटली इन्फॉर्म, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव ऑलरेडी इन एडवांस, देखो सम एरियाज में साइक्लोन्स आता है, कोस्टल एरियाज में आता है, मैंने बोला ना। तो इन सच एरियाज व्हाट दे डू, दे कंस्ट्रक्ट साइक्लोन शेल्टर्स, ठीक है। साइक्लोन शेल्टर्स बनाते हैं। व्हाट आर साइक्लोन शेल्टर्स, देखो जो घर वगैरह है, इफ साइक्लोन इज वेरी पावरफुल, घर तो टूट जाएंगे। इफ फ्लड कम्स तो घर के अंदर पानी आ जाएगा, तो आप घर में नहीं रह पाओगे। सो दे हैव शेल्टर्स व्हिच आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसेस, मे बी दे आर अंडरग्राउंड है, तो वहां पे दे विल कीप पीपल सेफ, दे आर कॉल्ड साइक्लोन शेल्टर्स, ठीक है ना। घर के बेसमेंट में बना लेते हैं कुछ लोग, कुछ जगह पे गवर्नमेंट बड़ा बड़ा बनाती है वेयर पीपल कैन गो, तो कुछ जगह प्राइवेट लोग बना देते हैं। तो दे आर साइक्लोन शेल्टर्स व्हिच आर मेड इन एडवांस सो दैट इफ अ साइक्लोन कम्स, अगर साइक्लोन आया तो पीपल कैन गो एंड स्टे सेफ ओवर देयर, ठीक है। ऑल्सो गवर्नमेंट अरेंजेस फॉर पीपल टू मूव। अगर मेरे गांव में साइक्लोन आने वाला है या मेरे सिटी में साइक्लोन आने वाला है, तो गवर्नमेंट विल अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, कि बसेस का इंतजाम करेगी गवर्नमेंट, बसेस अरेंज करेगी, या जिसके पास खुद का कार है उनको है ना रोड पे रास्ता बनाएगी कि ओके गो फास्ट, जल्दी जल्दी चले जाओ, साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स गवर्नमेंट डज। तो ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने किया। अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इफ वी आर देयर इन अ साइक्लोन एरिया, हम क्या करेंगे, we should do two things, like there are some things which we should do and there are some things which we should not do. So what we should not do, we should not ignore the warning. अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई साइक्लोन आने वाला है, तो then we should listen to the government, because गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं बोल रहा है। You can check है ना गवर्नमेंट कहां से बोल रहा है, चेक के न्यूज फेक तो नहीं है, बट
जनरली ऐसी फेक न्यूज आपको आएगी नहीं, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे नहीं बोलना कि अरे यार साइक्लोन आते जाते रहेंगे, हमें क्या होने वाला है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। साइक्लोन आ रहा है तो इसका मतलब आ रहा है, ठीक है ना। इंटरनेट पे सर्च कर लो एक टाइम, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो। सो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स। अगर आपको बोल रहा है कि यू हैव टू इवैक्यूएट, आपको एरिया खाली करना है, आपके एरिया में फ्लड आने वाला है, तो यू शुड कोऑपरेट, यू शुड कोऑपरेट एंड यू शुड नॉट इग्नोर देम। यू शुड नॉट से कहना नहीं होता भाई कुछ भी ऐसे, तो ठीक है, दैट इज समथिंग वी शुड नॉट डू। एंड व्हाट शुड वी डू? वी शुड मेक ऑल द अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द हाउस होल्ड गुड्स। घर का जो सामान है उसको कैसे शिफ्ट करना है, इसका पहले से प्लान करके रखना है हमें। अगर आपके पास पेट्स है या आपके पास डोमेस्टिक एनिमल्स है घर में किसी के पास कैट है, किसी के पास डॉगी है, या किसी के पास है ना शीप है, या किसी के पास काऊ है जिसका दूध लेते हैं, या डोमेस्टिक एनिमल्स कोई भी है, तो इनको कैसे शिफ्ट करेंगे इसका प्लान होना चाहिए आपके पास। आपके पास व्हीकल्स है तो व्हीकल्स को छोड़ना है, लेके जाना है, हर चीज का पहले से प्लान होना है। सेकेंड क्या होगा हमें, अगर रोड पे ऑलरेडी पानी आ गया, इफ देयर इज अ फ्लड ऑलरेडी ऑन द रोड, देन वी शुड नॉट ड्राइव ऑन दैट रोड, ठीक है। फ्लड्स ने हो सकता है रोड को डैमेज कर दिया होगा, मे बी यू विल फ्लो विद द फ्लड। आपने वीडियोस तो देखी होगी ना, बहुत टाइम क्या है ना, बड़ा सा फ्लड आया एंड द कार्स आर फ्लोइंग अवे, द व्हीकल्स आर फ्लोइंग अवे, सो वी शुड नॉट ड्राइव ऑन द रोड इफ देयर इज ऑलरेडी वाटर एंड वी कैन नॉट सी द रोड, ठीक है। एंड वी शुड ऑलवेज हैव फोन नंबर्स, इमरजेंसी सर्विसेज के फोन नंबर्स। आप में से कितने लोगों को पता है पुलिस का फोन नंबर, कितने लोगों को पता है? पुलिस का सबको पता है, पुलिस का फोन नंबर इज 100, ठीक है। लेकिन दूसरे फायर सर्विसेज का फोन नंबर किसको पता है, एम्बुलेंस का फोन नंबर किसको पता है? अपने स्टेट में अलग अलग होगा, फिर नेशनल नंबर इमरजेंसी का अलग होगा, तो ये सारे नंबर्स आपको पता होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दीज नंबर्स, ठीक है। तो क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग अच्छे ही कमेंट्स कर रहे हो, फाइन। तो ये तो क्लियर हुआ ना कि आप क्या कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड डू एंड दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नॉट डू, ठीक है ना। एंड इफ यू आर स्टक इन अ साइक्लोन हिट एरिया, तो ये तो हो गया कि साइक्लोन में से बच के कैसे जाना है, साइक्लोन से पहले का हो गया ये, ठीक है ना। अरेंजमेंट करना है, पहले से कॉल करना है हमें, कहाँ पे गाड़ी चलानी है, कहाँ नहीं चलाना है, ये तो वो है। अगर साइक्लोन आ गया और आप फिर भी अटके हुए हो, व्हाट यू शुड डू देन, इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, साइक्लोन हिट कर दिया एरिया पे, अभी साइक्लोन आ गया है, साइक्लोन आके चला भी गया, व्हाट शुड यू डू एट दिस टाइम? सो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड नॉट ड्रिंक दैट वाटर, ठीक है। जो पानी अगर घर में आ गया फ्लड में, आपको प्यास लगी, तो ऐसा नहीं है ग्लास लेके ऐसे नीचे का पानी पी लो, घर में पानी नहीं है बोल के, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज दैट वाटर माइट बी कॉन्टेमिनेटेड। उसके अंदर में भी सीवेज का पानी, आपका टॉयलेट का पानी भी उसमें मिक्स हो गया होगा, देयर कैन बी लॉट ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ दैट। मे बी कहीं पे कोई केमिकल प्लांट था, उसका पानी उसमें मिक्स हो गया है, कहीं पे कोई इंडस्ट्री से आ रहा था। सो वी शुड नॉट ड्रिंक द वाटर, ठीक है, जो आ गया बाहर से। वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर सेपरेटली, ठीक है ना, इमरजेंसी के लिए। अगर आपका घर के पास साइक्लोन आने का है, पहले से वार्निंग तो आपको मिल गई थी, तो यू शुड हैव, यू नो, पहले से पानी रेडी रखना है आपको, क्या है ना, ड्रिंकिंग वाटर आई विल कीप सेफ सो दैट व्हेन आई फील थर्स्टी आई विल हैव वाटर टू ड्रिंक। तो यू शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, ठीक है। सर कल मेंटी करोगे? यस, कल मेंटी पक्का करेंगे, ठीक है ना, कल मेंटी पक्का। तो फिर उसके बाद में मयंक कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट मयंक कृष्णा, लॉट्स ऑफ लव टू यू पीपल एज वेल, ठीक है, बट मैं ऐसा मानता तो नहीं हूं, बट ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। और अगर घर में पानी आ गया है आपके, सो यू शुड नॉट टच द स्विचेस। घर में स्विच होगा ना, खटका होगा, यू शुड नॉट टच देम। व्हाई यू शुड नॉट टच देम? बिकॉज आपको शॉक लग सकता है, यू शुड गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, यू कैन गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, सो यू शुड अवॉइड टचिंग एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स। या बाहर स्ट्रीट लाइट के पास जो वायर्स होते हैं वो गिर गए हो, तो यू शुड नॉट गो नियर दैट, बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर, राइट, वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सो यू शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। So do not touch the wet switches or anything. And ऐसे नहीं बोलना कि अभी तो पानी आ गया है, मैं तो घर में से बोट बना के निकलूंगा, पूरा महल्ले में घूम घूम के देखूंगा कि क्या हो रहा है, कितना पानी आया। नो, you should not do that. You should not go out and just for fun. अगर कुछ काम है तो go with all the precautions, ठीक है, बट कुछ काम नहीं है तो जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर सीइंग कि कितना पेड़ गिरा है देखते हैं, यू शुड नॉट गो, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कहीं भी आपको शॉक लग सकता है, मे बी कभी ड्रेनेज के अंदर लोग चले जाते हैं, सो यू शुड नॉट गो आउट जस्ट फॉर फन,
ठीक है। और आपको रेस्क्यू करने के लिए आर्मी वाले आएंगे मोस्टली, या फिर डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट वाले आएंगे। देयर विल बी पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो उनको प्रेशराइज नहीं करना है, उन्होंने जैसा जैसा बोला यू हैव टू hear them, you have to listen. If they say कि see you have to leave your house right now, you should say okay we will leave the house. If they say कि अभी इतनी ही हेल्प कर सकते हैं, you should say thank you for helping us. ठीक है, इतना ही करना है. You should not pressurize. ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे कैसे बोलोगे? No, they are there to help you. So you should be respectful with them. You should not pressurize them. You should hear whatever they say. You should listen to them and do whatever they say. ठीक है? You should cooperate with them. You should cooperate with your friends and neighbors जो आसपास लोग हैं. Everyone should help each other out because everyone is in a difficult situation. Yes or no? So if there is any difficulty, you should all cooperate and help each other. Cool. Now we can all friends. Yes, I mean, I'm saying all of you can be friends now. ठीक है, तो अभी कोई लड़ाई नहीं करेगा, अभी सब फ्रेंड बन गए हैं ना. ठीक है, वेरी नाइस. तो वैसे ही फ्रेंड्स को हेल्प करना है हमेशा. यू शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर एंड यू शुड हेल्प एवरीवन आउट. नेबर्स को हेल्प करना है, फ्रेंड्स को हेल्प करना है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक अ साइक्लोन और टोर्नेडो जब आता है, तो तब तो ज्यादा ही हेल्प करना है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू अंडरस्टूड. जो भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा. कल मेंटी होगा इसी के ऊपर, तो बी प्रिपेयर्ड. आप तीनों वीडियोस देख लेना एक टाइम. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है ना. मेंटी कल होगा, टुमारो. मेंटी विल बी टुमारो. अगर आपको पसंद आया चैप्टर, ये चैप्टर पसंद आया है आपको, या मेरा टीचिंग अच्छा दिखा आपको, तो प्लीज गो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी क्लास 7th एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. लेट मी सी आप लोग अभी कमेंट्स में क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई वाज नॉट रीडिंग द कमेंट्स. ठीक है ना. Someone is saying sir I play फ्री फायर. ठीक है, खेलो यार. पबजी तो बंद हो गया है, अभी तो फ्री फायर ही खेलना पड़ेगा ना सबको. So Menti is tomorrow. Again I will just write it over here. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है ना. I will write it over here. Menti tomorrow 7 PM. 7 PM को मेंटी होगा कल, एंड 7 PM को मेंटी होगा फुल चैप्टर का. ठीक है. तो कल फुल चैप्टर का मेंटी होगा. और कौन लेगा मेंटी आपका? हु इज गोइंग टू टेक द मेंटी? दिस गाय ओवर, राइट ओवर. यहाँ पे जो एरो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये वाला, यही है वो बंदा जो लेगा कल का मेंटी. ठीक है, ये बंदा कल का मेंटी लेने वाला है. तो इसको अच्छा सा इससे समझ लो. इसने जो भी ये बंदे ने पढ़ाया है आप लोगों को सुन लो. उसके बाद अच्छा ही पढ़ा लेता है, ठीक ठाक पढ़ाता है बंदा, मैं जानता हूं उसे. सो पे अटेंशन टू द क्लास. कल वाले क्लास भी एक टाइम देख लेना. उसके बाद में आप लोग प्रिपेयर होके कल 7 o'clock को विल हैव अ मेंटी. डे आफ्टर टुमारो वी विल सी इफ वी कैन मेक अ साइक्लोन का मॉडल बना सकते हैं क्या, विल फाइंड आउट. ठीक है, या टोर्नेडो का मॉडल बना सकते हैं, या वर्लपूल तो बना सकते हैं. ठीक है ना, वर्लपूल बना सकते हैं हम लोग. तो विल ट्राई टू मेक अ वर्लपूल. ठीक है. सर आर यू यूजिंग ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन? आई एम यूजिंग अ ग्रीन स्क्रीन गाइस. मैं ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहा हूं. दिखाऊं क्या आपको? शुड आई शो यू माय ग्रीन स्क्रीन? आई विल शो माय ग्रीन स्क्रीन टू यू. शो ग्रीन स्क्रीन दिखाने का बहुत ही इजी तरीका है. ऑल यू हैव टू डू इज, या यू हैव टू डू दिस, और ऐसा करने से ग्रीन स्क्रीन आ जाता है. ठीक है. 3 2 1 आ गया देखो ग्रीन स्क्रीन. सो दिस वाज द ग्रीन स्क्रीन. वापस बंद कर दूंगा ग्रीन स्क्रीन को. 3 2 1 ग्रीन स्क्रीन बंद हो गया. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. तो अच्छा लगा ना आप लोगों को? गो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ. कल मेंटी होगा. मेंटी में मुझे ज्यादा लोग चाहिए. 7 o'clock का एग्जैक्ट शार्प हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है ना. सो इज दैट फाइन एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट कूल विथ एवरीवन? चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड बाय 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 बाय. चलो बाय बाय एवरीवन. बाय बोलूं या ना बोलूं? ठीक है, चलो बाय बाय. बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए. ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं. आज उड़ के करते हैं. ठीक है, आई विल ट्राई टू पुल इट.
आ गए, टिंग टिंग, चलो हो गया, सब्सक्राइब भी कर दिया मैंने। तो अभी आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो, आप लोग भी लाइक कर दो, एंड आई एम गोइंग, गुड नाइट, बाय बाय बाय।